اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لولوا ٹی وی کے اردو خبرنامے میں خوش آمدید۔ میں ہوں تفسیر زارا۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر۔ بحرینی حکام کے ظلم و ستم کے خلاف عوام کا احتجاج جاری، جیل میں قیدیوں پر تشدد، متعدد زخمی۔ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے لاکھوں یمنی عوام ایک بار پھر سراپا احتجاج۔ اسرائیل کو مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، سید حسن نصر اللہ کی وارننگ۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات، مسلمان 4 کروڑ، امیدوار ایک بھی نہیں۔ انسانیت دشمنوں کی امن کے مراکز کے خلاف دہشت گردی، اسلام کو بدنام کرنے کی رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھیں گے خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ اصلاحاتی تحریک کی 6ٹی سالگرہ کے موقع پر شروع ہونے والے حکومتی ظلم و ستم کے خلاف بحرینی عوام کے احتجاجی مظاہروں کا تاحال سلسلہ جاری ہے۔ بحرین کی خونی جمعرات کی یاد میں گزشتہ روز میدان لولوا تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے بحرینی حکومتی فورسز نے ایک بار پھر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ 17 فروری 2011 کا دن بحرین کی تاریخ میں خونی جمعرات کے نام سے منسوب ہے، جس دن ظالم آل خلیفہ حکمرانوں کی ایما پر بیرونی افواج نے ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے نہتے پرامن مظاہرین پر خونی حملہ کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر دیا تھا۔ اس خونی واقعے کی یاد منانے کے لیے ہزاروں مظاہرین نے خاردار باڑوں اور حکومتی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین حکومتی پالیسیوں اور ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کے دوران حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی کرتے رہے۔ بعض مقامات پر مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کی مختلف علاقوں میں مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، جس کے دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آنسو گیس کی بے تحاشا شیلنگ اور شارٹ گنوں سے فائرنگ بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں بعض مظاہرین زخمی بھی ہوئے۔ سنابس، دیہ، جیدف کے علاقوں میں بھی بحرینی مظاہرین اور حکومتی سیکیورٹی فورسز کے دوران جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ ان علاقوں میں 3 مظاہرین کو سیکیورٹی حکام نے گرفتار بھی کیا ہے۔ بحرین کی بدنام زمانہ جیل جو میں غیر ملکی سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے سیاسی قیدیوں پر تشدد کے نتیجے میں متعدد قیدی زخمی ہو گئے۔ حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے جیل کے اندر بلڈنگ نمبر 6 میں قید افراد کی ایک بڑی تعداد کو بے دردی سے مارا پیٹا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب غیر ملکی سیکیورٹی اہلکار عمارت کے اندر داخل ہوئے اور قیدیوں کو بغیر کسی وجہ کے وحشیانہ انداز میں تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس ظالمانہ تشدد کے نتیجے میں زخمی ہونے والے قیدیوں کی ایک بڑی تعداد کو مبینہ طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آل خلیفہ حکومت کی ایما پر جیل حکام اس وقت سے قیدیوں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کے مرتکب ہوتے آ رہے ہیں، جب سے 10 آدمیوں کا ایک گروہ مبینہ طور پر جنوری میں جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، جن میں سے 3 کو بعد میں منامہ کی سیکیورٹی فورسز نے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ سمندر کے راستے فرار ہونے کے بہانے قتل کر دیا تھا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ اگر بحرینی حکومت نے سیکیورٹی فورسز کو لگام نہ دی تو بحرین میں بدترین انسانی حقوق کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ بحرینی حکام کی جانب سے حالیہ ہفتوں میں پرامن مظاہروں پر تشدد، بحرینی شہریوں کو ثوابدیدی سزائے موت، گرفتاریوں کے تسلسل اور اظہار رائے کی آزادی پر مسلسل پابندی کے باعث انسانی حقوق کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے علاقائی آفس بیروت کے ڈپٹی ڈائریکٹر لین معلوف کے مطابق بحرین کی صورتحال اب ایک نازک موڑ پر ہے۔ 2017 کے پہلے 2 ماہ میں سیکیورٹی فورسز کے بہیمانہ تشدد میں اضافے کے ساتھ ساتھ 2011 کی تحریک کے بعد پہلی بار سیاسی قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد ہوتا دیکھا گیا ہے۔
जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मंतकी और गैर मुहज्जब अंदाज तशद्दुद में भी एक खतरनाक इजाफा सामने आया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया है कि बहरीनी हुक्काम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाम दिया जाना जरूरी है, जबकि शहरियों के पुरअमन इज्तमा, तंजीम साजी और इजहार राय के हकूक के एहतराम के साथ साथ इंतकामी और सियासी बुनियादों पर सजाए मौत जैसे इकदाम फौरी रोकने की अशद जरूरत है। बसूरत दीगर बहरैन में बदतरीन इंसानी हकूक का बहरान पैदा हो सकता है। अलावा अजीम बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक के निगरान इदारे ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और दीगर सियासी और इंसानी हकूक के कारकुनों को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। सऊदी जंगी इत्तेहाद की जारहियत के खिलाफ लाखों यमनी अवाम ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। अंसारुल्लाह तहरीक की आला सियासी क़यादत की अपील पर लाखों यमनी अवाम ने सना में जुमे के दिन किए जाने वाले मुजाहरों में भरपूर शिरकत करके आले सऊद की जानिब से यमन पर ढाए जाने वाले मजालिम पर बैनुल-अक़वामी इदारों की मुजरमाना खामोशी की मजम्मत की है। इससे पहले भी कई बार यमनी अवाम ने आले सऊद के खिलाफ वसी पैमाने पर मुजाहरे करके अंसारुल्लाह तहरीक के हमरा अपने खून के आखिरी कतरे तक आले सऊद के खिलाफ जंग करने का अहद किया था, जबकि दूसरी जानिब सऊदी जंगी इत्तेहाद की जानिब से निहत्ते अवाम पर फिजाई हमलों के जवाब में यमनी फौजी जराये के मुताबिक यमनियों का मिसाइल जनूबी सऊदिया में वाक़े असीर नामी इलाके के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा लगा है। यमनी हुक्काम के मुताबिक ये मिसाइल हमला सऊदी इत्तेहादी अफवाज की जानिब से सना के शुमाल में खवातीन की मजलिस अज़ा पर होने वाले हमले के जवाब में किया गया है। याद रहे कि सऊदी जंगी तैयारों ने गुज़श्ता रोज सना के शुमाल में अरहब में जारी खवातीन की मजलिस अज़ा पर बमबारी की थी, जिसके नतीजे में 8 खवातीन और 1 बच्चा शहीद जबकि 10 खवातीन जख्मी हुई थी। यमन सऊदी इत्तेहाद ने इससे कबल भी कई बार आजादारी की मजालिस को निशाना बनाया है, जिनमें से सबसे बड़ा हमला यमनी दारुल हुकूमत सना में एक बड़े हॉल में मुनक्किद मजलिस अज़ा पर किया गया था, जिसमें कम से कम 1000 यमनी शहरी शहीद और जख्मी हुए थे। सऊदी अरब के लड़ाका तैयारे बदस्तूर यमन के निहत्ते अवाम पर बमबारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक हजारों बेगुनाह शहरी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब यमन के खिलाफ सऊदी इत्तेहादी अफवाज के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी एतराफ किया है कि यमनी फौज और अवामी रजाकारों के साथ झड़पों में मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 फौजी मारे गए हैं। कुछ अरसा कबल भी यमनी फौज के हाथों मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 फौजी मारे गए थे। इराक को दहशतगर्दों के वजूद से पाक करने के लिए इराकी अफवाज और अवामी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी। दहशतगर्दों के कई हमले पसपा, दर्जनों हलाक और जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द गिरोह दाइश के हमले पिस्पा करके इराकी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। इराकी फोर्सेज ने मगरबी तल अफर में 300 से जायद दाइशी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। दहशतगर्द तंजीम दाइश के अरकान की एक बड़ी तादाद को इस वक्त शदीद जानी और माली नुकसान से दो चार होना पड़ा जब उन्होंने मगरबी तल अफर के इलाके ऐनुल तलावी और ऐनुल हिस्सान पर 8 बारूदों से भरी गाड़ियों समेत भारी हथियारों से हमला करने की कोशिश की। ताहम इराकी अफवाज और अवामी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करके इसे नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब इराकी फिजाइया ने मज़कूरा इलाकों में मौजूद दाइश के ठिकानों पर शेलिंग करके मुतादिद तकफीरियों को हलाक कर दिया है। अवामी फोर्स इराकी हिजबुल्लाह के कमांडर का कहना है कि ऐनुल तलावी, खरबतुल जहश और ऐनुल हिस्सान की जानिब से 300 से जायद दहशतगर्दों ने मगरबी तल अफर पर हमला कर दिया। ताहम अवामी फोर्स के अरकान की जुर्रत और शुजात के सामने न टिक सके और अवामी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देकर इनके इस हमले को बुरी तरह नाकाम बना दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता एतवार को सुबह नैनवा में अवामी फोर्स हश्द-उश-शाबी पर दाइश के 200 से जायद दहशतगर्दों ने 20 बारूदों से भरी गाड़ियों के हमरा हमला करने की नाकाम कोशिश की थी। हश्द-उश-शाबी के जवाबी हमले के नतीजे में 50 से जायद दहशतगर्द हलाक और जख्मी हो गए थे। हलाक होने वालों में दाइश का एक सरगना अबू अनवर भी शामिल था। दूसरी जानिब जैसे जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ इराकी सरजमीन पर घेरा तंग होता जा रहा है, वो अपनी वहशियाना हिकमत अमली में तब्दीली लाते हुए बर्बरियत की नई दास्तानें रकम कर रहे हैं, जिसकी मिसाल गुज़श्ता हफ्ते बगदाद और दीगर इलाकों में किए जाने वाले कार और खुदकुश हमले हैं, जिनके नतीजे में दर्जनों निहत्ते इंसानों की जानें तल्फ हो गईं और मुतअद्दिद जख्मी होकर मौत व हयात की कशमकश में हैं। दहशतगर्द गिरोह दाइश के जंगजू अर्रका से राह फरार इख्तियार करने लगे। दाइश की क़यादत कारकुनान को तन्हा छोड़कर पहले ही वहां से फरार कर चुकी है। आलमी इत्तेहादी फौज की हिमायत याफ्ता सीरियन डेमोक्रेटिकल फोर्सेस की अर्रका की जानिब पेशकदमी के बाद दहशतगर्द तंजीम दाइश के कारकुनान गिरोह दर गिरोह फरार हो रहे हैं। बिल आखिर दाइश अपना नाम नेहाद दारुल हुकूमत शहर भी छोड़ने पर मजबूर हो गई है। अमरीकी वजारत दिफा के तर्जुमान जेम्स डेविस का कहना है कि अर्रका से दाइशी दहशतगर्द गिरोह दर गिरोह फरार हो रहे हैं।
रका में भी अब दाइश को जबरदस्त शिकस्त का सामना है, जिसकी वजह से दाइशी क़यादत रका से फरार हो चुकी है। जुमे के रोज रूसी जंगी तैयारों ने शाम के शुमाली सूबे में दहशतगर्दों के गढ़ रका में दाइश के अहम ठिकानों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। रूसी तैयारों ने इस कार्रवाई के दौरान क्रूज मिसाइलों को इस्तेमाल करते हुए दाइश के एक कमांडर कंट्रोल सेंटर समेत कई तरबियती मराकज को भी तबाह कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब कजाकिस्तानी दारुल हुकूमत आस्ताना में शामी बहरान के सियासी हल के लिए जारी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज जामिन ममालिक की मौजूदगी में जंगबंदी को बरकरार रखने और जिनेवा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जमीन हमवार करने के लिए कोशिशों के मुआहदे के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है। अगले हफ्ते अब शामी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जिनीवा में मुनक्किद होंगे। अगरचा मुज़ाकरात के इस दौर में कोई मजीद वाज़ेह पेशरफ्त न होने के बावजूद रूस के मुज़ाकरात का सरगई लारूफ के मुताबिक शामी हुकूमत और मुसल्लह हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान शामी बहरान के सियासी हल की जानिब से बिलवास्ता मुज़ाकरात को मुनफरिद और एक कदम आगे जरूर करार दिया जा सकता है। कजाकिस्तान दारुल हुकूमत में मुनक्किद इस इजलास में तीनों जामिन ममालिक की मौजूदगी में कैदियों के तबादले पर भी फरीकैन राजी हो गए हैं। ताहम इस इजलास का एक मुश्तरका अलामिया मंजूर नहीं किया गया था। आस्ताना मुज़ाकरात के मौका पर अक़वाम मुत्तहिदा के शाम के लिए खसूसी एलची स्टीफन डी मस्तूरा का रूसी दौरे के दौरान कहना था कि आस्ताना मुज़ाकरात शाम में अमन के क़याम के लिए अच्छी शुरुआत है और 23 फरवरी को जिनीवा में मुनक्किद होने वाले आइंदा इजलास के लिए बुनियाद फराहम करेंगे। ताहम इनका कहना था कि शामी शहरियों को इमदादी काफिलों तक ज्यादा रसाई की जरूरत है। इसराइल की इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों को मिटाने की देरीना ख्वाहिश हरगिज पूरी नहीं होने देंगे। इसराइली तनसीबात हमारे निशाने पर है। सैयद हसन नसरुल्लाह का पैगाम। लुबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने शहीद सैयद अब्बास मूसवी की 25वीं बरसी के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि शोहदा के पाकीज़ा लहू को हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे और खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पीछे इस्लाम और मुसलमानों का अजली और अब्दी दुश्मन इसराइल है। इनका मजीद कहना था कि लुबनान पर इसराइली हमले और जंग की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। जुलाई 2006 की जंग ने इसराइल को जिस नाकामी से दोचार किया था, इसके बाद ताहाल फकत इसराइली बयानबाजी ही सुनने में आई है। लेकिन अगर इन अफवाहों में जरा भी सच्चाई है तो इसराइल और इसके हिमायती ये जान ले कि हमारे दुश्मन 2006 और 2017 की जंग में हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन में फलक बोस हौसला और हिम्मत देखेंगे। इसराइल हिजबुल्लाह की रोज बरोज बढ़ती हुई ताकत की वजह से इंतहाई परेशानी और खौफ का शिकार हो चुका है। सैयद हसन नसरुल्लाह के हालिया खिताब में एटमी तनसीबात तक रसाई और डीमोना एटमी पावर प्लांट को उड़ा देने की धमकी ने इसराइल के होश उड़ा दिए हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि लुबनान के खिलाफ किसी भी किस्म की अहमकाना जंग शुरू करने का सोचा भी गया तो ये याद रहे कि हम अपने खतरात और सलाहियतों के साथ निहायत संजीदा हैं और हम अमोनिया टैंकों तक न फकत रसाई रखते हैं बल्कि इसराइल उन्हें जहां कहीं भी मुंतकिल करेगा हम वहां पहुंचकर उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को खबरदार किया कि वो पूरे खित्ते के लिए खतरे की नुमाइंदगी करने वाले एटमी प्लांट डीमोना को हदफ बनाएंगे और इसराइली एटमी हथियारों को इसराइल के लिए ही खतरे में तब्दील कर देंगे। सैयद हसन नसरुल्लाह के इस बयान ने इसराइल के लिए नए महाज का रास्ता खोल दिया है। मुल्क में हंगामी सूरत हाल के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और इस धमकी ने अवाम में खौफो हिरास फैला दिया। फदक ज़हरा, लोलुआ टीवी। कहत साली से एक और संगीन इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा। अक़वाम आलम के 4 मुख्तलिफ खित्तों में कहत ने सिर्फ 6 माह के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा इंसानी जानों को खतरात से दोचार कर दिया। आलमी खुराक प्रोग्राम के मुताबिक ये तादाद यूरोपीय ममालिक रोमानिया या अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की मजमूई आबादी से भी ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम के आला तरीन माहिर इक़्तिसादियात आरिफ हुसैन ने कहा है कि यमन, शुमाल मशरकी नाइजीरिया और जनूबी सूडान में जंगों के नतीजे में न सिर्फ खुराक की कीमतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं बल्कि इस सूरत हाल ने हजारा घरानों को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। बर आज़म अफ्रीका के मशरकी हिस्से में खुश्क साली मजमूई तौर पर इस खित्ते में ज़राअत को तबाहकुन हद तक शदीद नुकसान से दोचार कर चुकी है। आरिफ हुसैन ने मजीद कहा कि आलमी खुराक प्रोग्राम से बतौर एक माहिर इक़्तिसादियात अपने ताल्लुक के पिछले करीब 15 सालों में कम अज कम मैंने ऐसा पहली मरतबा देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दुनिया के 4 मुख्तलिफ खित्तों को बैक वक्त कहत के खिलाफ खबरदार किया जा रहा है। ये हमारे इंतहाई अफसोसनाक है कि आज 21वीं सदी में भी दुनिया इस हद तक खुश्क साली और कहत का सामना कर रही है कि माहिरीन सिर्फ 6 माह के अरसे में 200 मिलियन या 2 करोड़ से जायद तक मुमकिन इंसानी हलाकतों के खिलाफ खबरदार करने पर मजबूर हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह में कहत की वजह से मौत के खतरे से दोचार 2 करोड़ से ज्यादा इंसानों में बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं।
ایسے میں دنیا کے 4 مختلف خطوں میں کروڑوں انسانوں کی بھوک کے ہاتھوں ہلاکت کا خطرہ ایک ایسی المناک صورتحال ہے جس نے بین الاقوامی امدادی اداروں اور ان کے کارکنوں کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو، وسطی افریقی جمہوریہ، مالی اور نائجیریا کی مثالیں ایسے ممالک کی ہیں جہاں خوراک کی فراہمی کے حوالے سے حالات میں مستقل بے چینی اور بے یقینی پائی جاتی ہے، اور مقامی طور پر ان ملکوں میں ایسے وسائل بھی دستیاب نہیں کہ کسی طرح وہاں ممکنہ قحط کے تدارک کے لیے کوئی علاقائی حل نکالا جا سکے۔ کشمیر میں جمعے کو یوم مزاحمت منایا گیا، جس میں بھارتی فوج کے سربراہ کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر کشمیری شہریوں نے دوران احتجاج پاکستانی پرچم ایک بار پھر لہرا دیے۔ انڈین فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے حریت پسندوں سے مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں کی آخری رسومات پر دھمکی دی تھی کہ جس نے بھی جموں و کشمیر میں پاکستانی پرچم لہرایا اسے بھارت دشمن اور دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا اور اس کے خلاف شدید کارروائی کی جائے گی۔ ایک بھارتی نجی ٹی وی چینل کے مطابق کشمیری نوجوانوں پر بھارتی فوجی سربراہ کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور جمعے کے روز مقبوضہ وادی میں مظلوم کشمیری عوام نے بھرپور انداز میں یوم مزاحمت منایا۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں کیے جانے والے مظاہروں کے دوران کشمیریوں نے نہ صرف بھارتی آرمی چیف کی دھمکی سے متاثر ہوئے بغیر پاکستانی پرچم لہرائے بلکہ کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے بھی لگاتے رہے۔ انتہائی سخت خون جما دینے والی سردی اور بھارتی شیلنگ کے باوجود احتجاج کرنے والے مظاہرین ہاتھوں میں پرچم تھامے پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ کشمیری عوام کی جانب سے مقبوضہ علاقوں سری نگر، سوپور، پلوامہ اور دیگر علاقوں میں بھارتی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پیلیٹ گن اور آنسو گیس کے شیلوں کا بے دریغ اور اندھا دھند استعمال کیا، جس کے بعد مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ بھارتی پولیس کی کارروائی میں 35 افراد زخمی ہو گئے۔ یوم مزاحمت کی کال مشترکہ کشمیری حریت قیادت نے دی تھی۔ بھارتی پارلیمانی انتخابات میں مسلمانوں کا استحصال جاری، 4 کروڑ مسلمانوں کی ریاست اتر پردیش میں ایک بھی مسلمان امیدوار نہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں فہیم احمد کی رپورٹ میں۔ انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش سمیت 5 ریاستوں میں پارلیمانی انتخابات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پارلیمانی انتخابات 4 فروری سے 8 مارچ تک ہوں گے اور تمام ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی 11 مارچ کو ہوگی اور یہ ریاستی انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان تمام ریاستوں کے نتائج 2019 کے پارلیمانی انتخابات کی سمت کا تعین کریں گے۔ انڈیا بظاہر تو سرکاری طور پر سیکولر ریاست ہے، لیکن سیاسی جماعتیں روایتی طور پر امیدواروں کی نامزدگی اور ووٹوں کے حصول کے لیے مذہب اور ذات پات کو ہمیشہ بنیادی معیار کے طور پر استعمال کرتی چلی آ رہی ہیں۔ مسلمانوں کا استحصال بھارتی سیاستدانوں کی ہمیشہ سے اولین ترجیح رہا ہے۔ 2014 کا پارلیمانی انتخاب بھارتی جمہوریت کی تاریخ کا پہلا ایسا انتخاب تھا جس میں اقتدار میں آنے والی حکمران جماعت میں سے ایک بھی مسلم رکن نہیں تھا۔ ملک میں مسلمانوں کی آبادی 18 کروڑ ہے، لیکن اس وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی سب سے کم ہے۔ نریندر مودی نے اگرچہ سبھی کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے، لیکن یہ محض اتفاق نہیں کہ انہوں نے اتر پردیش کی 403 سیٹوں کے لیے 4 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک کو بھی اپنا امیدوار نہیں بنایا، جبکہ بھارتی سپریم کورٹ نے انتخابات سے متعلق ایک فیصلے میں کہا ہے کہ انتخاب ایک سیکولر عمل ہے اور اس میں مذہب کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی امیدوار مذہب اور ذات پات کے نام پر ووٹ مانگتا ہے تو اسے نااہل قرار دیا جائے گا، لیکن جمہوریت کے نام نہاد دعوے دار ملک میں ہمیشہ قانون اور عدالتی فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جاتی رہی ہیں۔ بھارت میں مقیم مسلمانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 40 برس سے مسلمانوں کی کوشش صرف بی جے پی کو اقتدار سے روکنا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے خوف کی نفسیات کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو اصلی قومی دائرے میں آنے سے طویل عرصے تک روکے رکھا۔ بھارت میں مقیم مسلمان برسوں کی سیاست کے بعد اب تو یہ سمجھ گئے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے ان کا مسلسل استحصال کیا ہے، وہ نئے متبادل کی تلاش میں ہیں اور اس متبادل میں ابھرتی ہوئی جماعت عام آدمی پارٹی کے ساتھ ساتھ بی جے پی بھی شامل ہے۔ لیکن اتر پردیش جیسی ریاست جہاں ملک کے 20% مسلم آباد ہیں، وہاں ایک بھی مسلمان کو امیدوار نہ بنانا اس بات کا عکاس ہے کہ بی جے پی بھی اسی ڈگر پر ہے۔ ہندوستان میں 18 کروڑ مسلمان آباد ہیں جو ایک ناقابل فرموش افرادی قوت ہیں۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ بھارت کی ناانصافیوں کو روکا جائے اور اپنے تشخص اور بقا کی خاطر اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور یہی دور انڈیا کی سیاست میں تغیر لانے کا دور ہے، اور اس سیاسی تغیر میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ بی جے پی کو بھی اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی اشد ضرورت ہے۔ فہیم احمد، اللولوہ ٹی وی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعات کے بعد پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا۔ جماعت الاحرار کے ٹھکانوں پر حملے، متعدد دہشت گرد ہلاک۔
पाकिस्तानी सूबे सिंध के इलाके सेवन में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर में खुदकुश हमले के बाद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तानी आर्मी की जारी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इस वाक़े की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल कर ली थी, जबकि पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के ठिकानों पर हमला करके मुतअद्दिद ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज के हमले में मुबैना तौर पर जमातुल अहरार के डिप्टी कमांडर आदिल बाचा का कैंप, तरबियती कंपाउंड और 4 दीगर कैंप तबाह कर दिए गए, जबकि हमले में मुतअद्दिद दहशतगर्दों की हलाकतों की भी इत्तला है। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए ने तस्दीक नहीं की। वाज़ेह रहे कि पाक फौज के ताल्लुकात आमा ISPR के बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दों के ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं, जिसके बायस पाक अफगान सरहद को गुज़श्ता रात से हर तरह की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी एजेंसियों को पाक अफगान सरहद पर चेकिंग सख्त करने की हिदायत भी की गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की। आर्मी चीफ ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में छुपे ग्रुपों ने कबूल की है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर बाजवा ने अमरीकी कमांडर से दहशतगर्दी के खिलाफ वाक़यात रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अमरीकी कमांडर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, माली मावनत और सहूलतकारी को रुकवाएं। कबल अज़ीं अफगान सफारत खाने के आला हुक्काम को पाकिस्तानी जनरल हेडक्वार्टर GHQ तलब करके अफगानिस्तान में छुपे इंतहाई मतलूब 76 दहशतगर्दों की फहरिस्त हवाले की गई और मुतालबा किया गया कि या तो इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए या फिर इन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। बरे सगीर में अमन के फरोग के लिए सूफिया कराम ने अहम किरदार अदा किया। हालिया दौर में इंसानियत दुश्मन अनासिर की जानिब से मज़ारात को निशाना बनाकर आलमी अमन को खराब किया जा रहा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक की इस रिपोर्ट में। इस्लाम तलवार से नहीं किरदार से फैला है। जो लोग मफादात के बायस या तलवार के डर से मुसलमान हुए वही मुनाफिकीन करार पाए। अलबत्ता जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इस्लाम का प्रचार करने वालों का किरदार देखकर इस्लाम कबूल किया वो इस्लाम के सच्चे जानसार बने और उन्होंने इस्लाम की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों पर नाफज कर दिया। इस तरह बरे सगीर में इस्लाम के फ़रोग में सूफियाए कराम ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से लेकर हज़रत अली हजवरी दाता गंज बख्श और बरीमाम तक सूफियाए कराम की एक तवील फरिस्त है, जिनके पुरतासीर जुमलों ने लोगों के दिलों से कुफ्र के अंधेरे ख़त्म किए। सूफियाए कराम की महफिल में हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, बुद्धमत सब यकसां थे। अमीर व गरीब में भी कोई इम्तियाज़ ना था और उन्होंने इस अंदाज से तौहीद का प्रचार किया कि किसी गैर मुस्लिम के मज़हब पर तनकीद और बुराई नहीं की। चनाचे औलियाए कराम के इस हुस्न इखलाक और मसावात को देखकर दीगर मज़ाहिब के लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते चले गए। यही वजह है कि आज भी सूफिया के मज़ारों पर मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और सिख भी आते हैं और उनसे अकीदत का इजहार करते दिखाई देते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ारों पर हिंदुओं और सिखों की नुमायां तादाद देखी जा सकती है। जो अल्लाह के वली हैं वो मुस्लिमों को और गैर मुस्लिमों को एक सुकून का दरस देते हैं, भाईचारे का दरस देते हैं। और इस वक्त गवर्नमेंट को भी हर बंदे को सोचना चाहिए ये जो अमन वाली जगह जहाँ से इस्लाम फैलता है, दोस्त मोहब्बत का दरस जो लोग हमें देते हैं, उनके मज़ारात के ऊपर जो धमाके हो रहे हैं हमारे लिए और सब के लिए लम्हाए फ़िक्रिया है। सूफियाए कराम और बुजुर्गान दीन के मज़ारात अमन, मोहब्बत और यगानगत के गहवारे और इन रोशन इक़्तिदार की धमकती अलामात हैं। मगर दौरे हाज़र में ये मज़ारात इंसानियत दुश्मन अनासर का ख़ास हदफ बन रहे हैं। हाल ही में सेवन शरीफ में वाक़े हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 80 से ज़ायद अफराद शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। ताहम इससे पहले भी ये मराकज़ अमन इंतहा पसंदों के निशाने पर रहे। औलिया कराम के मज़ारात और मसाजिद में धमाके करने वाले दहशतगर्दी हो सकते हैं, ना कि इस्लाम के रखवाले, बल्कि ये दहशतगर्द हैं। हम इनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की अपील भी करते हैं। हम अमन के और सलामती के मुंतज़िर हैं। हमें अमन चाहिए, हमें सलामती चाहिए। इंसानियत और इस्लाम दुश्मनों की जानिब से बरसगीर में अमन का पैगाम लेकर आने वाली रूहानी शख्सियात के मज़ारों पर हमले इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि असल में वो ना मुल्क दुश्मन बल्कि आलमी अमन के दुश्मन हैं। मोहम्मद इशफाक, अल-लोलवा TV, इस्लामाबाद।
यूरोपीय यूनियन के नए कानून के तहत दहशतगर्दी की तरबियत, दहशतगर्दों की भर्ती और इसका प्रचार माली ताउन करना जुर्म के जुमरे में शुमार किया जाएगा। दुनिया भर में तेजी से फलती फूलती दहशतगर्दी ने अक़वाम आलम को परेशान करके रख दिया है और इस अफरियत के खात्मे के लिए दुनिया भर में कानून को सख्त बनाने और दहशतगर्दी के जराइम में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजाओं के अमल को तेज करने की कोशिशों की मुनज़्ज़म अंदाज में तेजी लाई जा रही है। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने भी दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खदशात के बायस फ्रांसीसी शहर स्ट्रासबर्ग में कायम यूरोपीय पार्लियामान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक नई कानून साजी मंजूर की है। इस कानून साजी के बाद अब यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन ममालिक पर लाजिम हो गया है कि वो कुछ मखसूस तर्ज अमल और रवैयों को जुर्म करार दें। इस कानून के तहत दहशतगर्दी की तरबियत और भर्ती के अलावा दहशतगर्दी का प्रचार करना या इसकी माली मदद करना या इसके लिए सफर करना अब जुर्म के जुमरे में आएगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई शख्स किसी ऐसे मुल्क का सफर करे जहां जंगी हालात पैदा हों, बल्कि अगर इस मकसद के लिए सफर यूरोप के अंदर भी किया जाए तो भी जुर्म होगा। ताहम यूरोपीय यूनियन के पार्लियामान की सतह पर मंजूर किए जाने वाले इन कानून का असर रुकन मुल्क जर्मनी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी में दहशतगर्दी के किसी मरकज का दौरा करना या दहशतगर्दों की इमदाद करना पहले ही काबिल सजा है। यूरोपीय कमिश्नर बराए सलामती अमूर जूलियन किंग ने दहशतगर्दी के खदशे के तनाजुर में जोर देते हुए कहा है कि ये इंतहाई जरूरी है कि तमाम रुकन ममालिक में दहशतगर्दी के खिलाफ कानून एक जैसे हों और इन पर एक ही तरह से अमल दरामद किया जाए। रूसी नायब वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात को कोई भी बैरूनी ताकत या इसके पैदा करदा असरात मुतासिर नहीं कर सकते। जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि सब फरीकैन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि तेहरान और मास्को के दरमियान ताल्लुकात बैरूनी हालात पर इंसार नहीं करते, बल्कि दोनों ममालिक का बहुत सारे मामलात पर एक दूसरे से ताउन और मौक़िफ़ में यकसानियत और इन ताल्लुकात की मजबूती का जरिया है, जिनमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और तारीखी जोहरी मुआहदे शामिल हैं। रूसी सीनियर सफारतकार ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद फरोग मिलेगा। उन्होंने रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान हमारा एक इंतहाई काबिल एतमाद साथी और मुस्तहकम करीबी हमसाया है। उन्होंने कहा कि हम इंसदाद दहशतगर्दी के मौजू पर एक पैदावारी मुकालमे के इनेकाद समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे मामलात पर ईरान के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश रखते हैं। सरगेई लावरोव ने कहा कि ईरान रूस दोनों तारीखी जोहरी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। सरगेई लावरोव ने इन ख्यालात का इजहार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल यूकिया अमानो के 14 फरवरी को इस तस्दीक के बाद किया कि ईरान की जानिब से जोहरी मुआहदे पर अमल दरामद जारी है। सरगेई लावरोव ने कहा है कि जोहरी मुआहदे पर अमल दरामद बहुत जरूरी है और इस पर अमल दरामद सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि सब फरीकैन की जिम्मेदारी है। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.loloatv.com। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब और ट्विटर पर भी लोलोआ टीवी उर्दू। बुध को हाजिर होंगे नई खबरों और तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।